الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی روزہ چھوڑنے کے تعلق سے جتنے بھی مجبوریاں اور بندے کے پاس جو کارن ہوتے ہیں ان کا بیان آج انشاءاللہ مکمل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد میں پھر اعتکاف کے بیان کو شروع کیا جائے گا۔ سماعت کریں پہلا مسئلہ، اعتکاف واجب اور صدقہ فطر کا بدلہ اگر ورثہ ادا کر دیں تو جائز ہے، اور ان کی مقدار وہی بقدر صدقہ فطر ہے، اور زکوٰۃ دینا چاہیں تو جتنی واجب تھی اس قدر نکالیں۔ بیان ہو رہا ہے کہ کسی بندے سے اپنی زندگی میں اعتکاف واجب چھوٹ گیا ہو یا ادائیگی کرتے وقت ٹوٹ گیا ہو، اسی طریقے سے اگر کوئی صدقہ فطر وغیرہ یا کوئی اور چیز آگے بیان ہو رہی ہے یا اسے زکوٰۃ چھوٹ گئی ہو، تو اعتکاف واجب اگر ٹوٹ گیا ہے تو اس کا بدلہ وہی ہے جو ایک روزے کے چھوڑنے کے بدلے میں جو رقم ادا کی جائے گی، یعنی صدقہ فطر کے برابر۔ اور اگر زکوٰۃ بندے کی زندگی میں رہ گئی تھی، اب اس کے بعد کے وارث چاہیں کہ ہم اپنے اس گزر جانے والے کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیں، تو زکوٰۃ کی جتنی رقم بنا کرتی تھی اس کے زندگی میں اس کے اوپر اتنی ہی رقم نکالی جائے گی، اور ورثہ نے اگر ان کی زندگی کے بعد میں اس کی بغیر وصیت کے بھی اگر ادا کر دی تو اعتکاف واجب کا بھی طرف سے اس کا فدیہ اور زکوٰۃ بھی جو ہے ادا ہو جائے گی۔ یہ بیان آگے سماعت کریں۔ شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا کہ جس کی عمر ایسی ہو گئی ہو کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہے کہ اب روزہ رکھ سکے گا، تو اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ہر روزہ کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزہ کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار میں ایک مسکین کو دے دے۔ شیخ فانی ایک شریعت کی خاص اصطلاح ہے جس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے، یہ بھی ایک کارن ہے روزہ چھوڑنے کا۔ شیخ فانی، شیخ بولتے ہیں بوڑھے کو، فانی کا مطلب حد سے زیادہ عمر دراز۔ تو ایک ایسا بندہ اتنا عمر دراز ہو گیا کہ جس کے بارے میں پکا یقین ہے کہ نہ تو ابھی اس موجودہ کنڈیشن میں یہ روزے رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی آئندہ، یہ بھی ہونا چاہیے، نہ ہی آئندہ اور آگے چل کے جن دنوں میں امید اس سے کی جا سکتی ہے کہ صاحب یہ آگے بھی اور روزے رکھ سکتا ہے، یعنی کہ بالکل امید ہی نہیں، کہ دن بدن کمزوری ہی آتی جائے گی بجائے اس کے کہ اس میں طاقت آئے، تو ایسے بندے کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ اب چھوڑنے کا مطلب یہ کہ وہ خود تو نہیں رکھ سکتا، لیکن اپنے ہر روزے کی طرف سے وہ صدقہ فطر کے برابر جو ہے یا تو اناج وغیرہ جو صدقہ فطر اس کے اوپر بنتا ہے یا رقم وغیرہ ادا کر دے، یا ایسا کرے کہ ہر روزے کے بدلے میں دونوں ٹائم کسی مسکین کو پیٹ بھر اپنے گھر پہ بلا کر کے یا اس کے وہاں پہنچا کر کے کھانا کھلا دے۔ اس کے لیے دونوں طریقے کی اجازت ہے اور دونوں طریقے سے آپشن ہے، یہاں اس کا بیان ہوا۔ آگے سماعت کریں۔ اگر ایسا بوڑھا گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے مگر جاڑوں میں روزہ رکھ سکے گا، تو اب افطار کر لے، اور ان کے بدلے میں جاڑوں میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ اب صدقہ فطر سے کام نہیں چلے گا، گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے، بھوک کی پیاس کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتا، لیکن سردیوں میں رکھ سکتا ہے ان روزوں کی قضا، تو یہاں چھوٹ دی جائے گی گرمیوں میں کہ آپ رمضان چھوڑ دیں، باقی اس مہینے کی پوری مکمل قضا آپ سردیوں میں کیونکہ روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ بوڑھا رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے پھر صدقہ فطر کی دینے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس کو پھر روزے ہی رکھنے پڑیں گے، اس کے بدلے میں قضا کرنی پڑے گی۔ اگر اس نے ان کی طرف سے فدیہ ادا کر دیا تو مانا نہیں جائے گا۔ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اب یہ فدیہ جو ہے صدقہ نفل ہو کر رہ گیا، ان روزوں کی قضا رکھے۔ مثال کے طور پر ایسا بندہ تھا جس کی کنڈیشن ابھی بیان ہوئی پہلے، شیخ فانی تھا، جو اس حد کو پہنچ گیا تھا کہ جس کے بارے میں لگ رہا تھا کہ نہ تو اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ ہی آئندہ اس میں اتنی طاقت آ سکے گی روزہ رکھے گا، اس نے اور یا اس کے ورثہ نے اس کی طرف سے اس کی موجودگی میں جو ہے صدقہ فطر ادا کر دیا، لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس بندے کو طاقت آ گئی، اب وہ روزہ رکھ سکتا تھا، اس کنڈیشن میں وہ پہنچ گیا تھا، تو اب اس کے جتنی بھی پہلے کے روزے جو اس کنڈیشن کی وجہ سے چھوڑے گئے تھے اور ان کی طرف سے جو اس کا فدیہ ادا کیا گیا تھا وہ نفل مانا جائے گا، اب اس کو دوبارہ سے روزے ان کے قضا رکھنے پڑیں گے۔ پہلا دیا ہوا فدیہ بطور نفل کے رب کے دربار میں مقبول ہوگا، لیکن روزوں کی طرف سے وہ فدیہ اب کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، روزے اب قضا کرنے پڑیں گے۔ جیسے اس کو دوبارہ طاقت آ گئی، معاف اسی وقت ہے، اسی وقت فدیہ قبول ہے کہ جب نہ تو موجودہ کنڈیشن میں روزہ رکھ پا رہا ہے اور نہ آئندہ ٹائم میں روزے رکھ سکتا تھا، اور اسی حالت میں پھر اس کا انتقال ہو جائے گا،
तो जाके उसका फिदिया रब के दरबार में मकबूल है। अगर बीच गैप में कोई ऐसा टाइम आ गया कि रोजा रख सकता था तो फिर ये पहला जो फिदिया है नफिल हो जाएगा। आगे समाप्त करें, ये उसके लिए इख्तियार है कि शुरू रमजान ही में पूरे रमजान का एकदम फिदिया अदा कर दे या आखिर में दे, और इसमें तमलीक शर्त नहीं। कह रहे हैं कि जो बंदा शरीयत ने जिसके लिए इजाजत दी है रोजा छोड़ने की और फिदिया देने का हुक्म जिसके लिए लगाया है, तो उसकी अपनी चॉइस है, अपनी चाहे तो पहले रमजान में ही मुकम्मल 30 रोजों का फिदिया अदा कर दे, पहले रमजान से लेकर के आखिर 30 रमजान तक के पहले रोजे को ही अदा कर दे कि साहब मेरे को तो तब भी देना, कल भी देना, आखिर में भी देना। तो उसने ये सोच करके मुकम्मल पहले ही रोजे को अपने पूरे 30 रोजों का फिदिया अदा कर दिया। अब ये पहला ऑप्शन, या दूसरा ये कि 20 रोजों में अदा कर दे, या ये कि फिर आखिरी 30 रोजों में मुकम्मल पहले दिन के लेकर के आज आखिरी दिन तक के रोजे का मुकम्मल फिदिया अदा कर दे। पहली बात। दूसरी बात यहाँ बयान हुई है कि जिसको ये फिदिया दिया जा रहा है मिस्कीन है जो इसका हकदार है, तो उसको उसका मालिक करना कोई जरूरी नहीं। यानी कि उसको वो चीज जो फिदिया की रकम है या जो भी अनाज वगैरह गल्ला वगैरह जो भी दे रहे हैं, उसको उठा करके उसके घर पर उसके यहाँ दे करके जाना पहुंचाना कोई जरूरी नहीं। सिर्फ उसके लिए अपने घर में कोई चीज ऐसे जो फिदिया की रकम है या गल्ला वगैरह, उसके लिए ये कह देना कि साहब ये आपकी अमानत है, आप ही के लिए, आपकी जो जी चाहे इसको जहां चाहे खर्च कर सकते हैं, बस ये काफी है, उसकी तरफ से फिदिया अदा हो जाएगा। अब उसकी मर्जी है कि वो इसको जहां चाहे खर्च करे या ले जाए या यहीं से इस्तेमाल में करे, कोई जरूरी नहीं है, बल्कि उसकी तरफ से फिदिया की रकम अदा हो जाएगी। आगे समाप्त करें, फिदिया में तमलीक शर्त नहीं है, बल्कि सिर्फ हलाल कर देना काफी है। और यह भी जरूर नहीं कि जितने फिदिये हों उतने ही मिस्कीन को दे, बल्कि एक एक मिस्कीन को कई कई दिन के फिदिये दे सकते हैं। मैं ये पहले पर बता चुका हूं आपको कि चाहे तो 60 मिस्कीनों को अलग अलग दिन अपने घर पे खाना खिला दिया जाए, या एक ही किसी बंदे को लगा दिया जाए कि डेली सुबह शाम को खाना खिलाया जाए, या ये कि 3 रोजों का फिदिया एक मिस्कीन को दे दे, 3 का दूसरे को दे दे, 5 का किसी और को दे दे, 10 का किसी और को दे दे। तो ये उसकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, और चाहे तो एक ही को सब दे दे, जैसा चाहे वो कर सकता है, जैसे उसके लिए सहूलत लगे। आगे समाप्त करें, कसम या कत्ल के कफारे का उस पर रोजा है और बुढ़ापे की वजह से रोजा नहीं रख सकता, तो उस रोजे का फिदिया नहीं है, और रोजा तोड़ने या जिहार का कफारा उस पर है। तो अगर रोजा नहीं रख सके तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। 2 चीजों में तो माफ है, कोई इतना ज्यादा बूढ़ा है कि जिसके ऊपर कसम का कोई कफारा बन रहा था, कसम के 3 रोजे बनते हैं, और इसी तरीके से कसम तोड़ दे तब जाके 3 रोजे बनते हैं। इसी तरीके से कत्ल, गलती से उससे कोई कत्ल हो गया तो उसके लिए 60 रोजे रखने पड़ते हैं। तो अब इन दोनों में वो इस कदर बूढ़ा है कि दोनों में से किसी एक को भी अदा नहीं कर सकता, ना तो कसम के 3 रोजे रख सकता है, ना गलती से जो उससे कत्ल हुआ तो उसने 60 रोजे रख सकता है, तो माफ है, फिदिया भी नहीं देना पड़ेगा। शरीयत ने उसको बिल्कुल माजूर और मजबूर रखा है। लेकिन हाँ, उसने जिहार वगैरह, जिहार बोलते हैं ये एक किस्म की तलाक है। पहले जमाने जाहिलियत में राइज था लोगों के अंदर, वो यूं कहा करते थे अपनी बीवी के लिए अंति आलिया कज़हरी उम्मी, या अंति आलिया कज़हरी उख्ती, या इब्न इब्नती। वो यूं कहा करते थे कि अपनी बीवी से गुस्से में, नाराज में, लड़ाई में कभी, कि तू मेरे लिए मेरी माँ की जैसी हो गई, या तू मेरे लिए मेरी बेटी की जैसी है, या तू मेरे लिए मेरी बहन की तरह है। तो ये एक उस जमाने में जाहिलियत की तलाक हुआ करती थी। तो माँ जैसी, बेटी जैसी, बहन जैसी होने का क्या मतलब कि तू हराम है मेरे लिए, जैसे मेरी माँ से निकाह हराम, तेरे से भी हराम, बहन से, बेटी से जैसे हराम, ऐसे तेरे से हराम। तो शरीयत ने उनकी इस बुरी फितरत को खत्म करने के लिए उनके ऊपर कफारा लगाया था कि या तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए या 60 रोजे रखे जाएं। तो यहां बताया है कि अब अगर कोई बंदा ऐसा है जो बुढ़ापे की वजह से उसने जिहार तो किया लेकिन रोजे नहीं रख सकता, तो शरीयत ने हुक्म दिया है कि फिर उसको 60 मिस्कीनों को या किसी भी तरीके से फिदिया की रकम अदा करनी पड़ेगी, माफी नहीं दी जाएगी। समाप्त करें, किसी ने हमेशा रोजा रखने की मन्नत मानी और बराबर रोजे रखे तो कोई काम फिर वो नहीं कर सकता जिससे उसकी जिंदगी का और औकात बसर हो सके, तो उसे बकदरे जरूरत इफ्तार की इजाजत है, हर रोजे के बदले में फिदिया दे, और इसकी भी अगर ताकत ना हो तो इस्तिग़फ़ार करे। किसी बंदे ने कसम खा ली कि मुझे कसम है कि मैं हर रोज पूरी जिंदगी रोजे रखूंगा, गैप नहीं करूंगा एक भी दिन का। अब वो ऐसा करता रहा कुछ दिन, लेकिन अब करते करते इस कंडीशन ये हो गई कि काम पे नहीं जा सकता, कारोबार नहीं कर सकता, क्योंकि कमजोरी आ गई बंदे के जिस्म में। तो अब उसके लिए शरीयत ने इजाजत दी है कि आप इफ्तार करें, और हर रोजे के बदले में जो आपने कसम खाई थी उसको निभाने के लिए हर रोजे के बदले में सदका फितर के बराबर जो है रकम खर्च करें या गल्ला दें। अब अगर इतनी भी उसके अंदर गुंजाइश नहीं कि साहब हर रोज इतना खर्च कर सके,
तो फिर शरीयत ने इजाजत दी है कि तौबा इस्तिगफार करें, रब तबारक व तआला की जात से उम्मीद है कि माफ फरमा देगा। अलबत्ता ऐसी कस्में नहीं खानी चाहिए जिसको निभा ना सके। शरीयत ने मना किया है ऐसी कस्मों के खाने से, लेकिन कोई जहालत में अगर ऐसा काम कर दे तो ये ऑप्शन है उसके लिए। नफिल रोजा जानबूझ करके शुरू करने से लाजिम हो जाता है कि तोड़ेगा तो कज़ा वाजिब होगी। कोई भी नफिल पूरे साल में कभी भी रोजा रखेगा जो वाजिब उसके ऊपर फर्ज नहीं था, उसको रख के तोड़ दिया तो कज़ा करनी पड़ेगी। और ये गुमान करके कि इसके जिम्मे कोई रोजा है, शुरू किया था, बाद को पता चला कि नहीं है, अब अगर फौरन तोड़ दिया तो कुछ बात नहीं, और ये मालूम करने के बाद नहीं तोड़ा तो अब नहीं तोड़ सकता, तोड़ेगा तो कज़ा वाजिब है। किसी बंदे ने सोचा कि मेरे पास फला रोजे की कज़ा बाकी है, रोजा रख लेता हूं, बाद में दिन में उसे पता चला कि यार नहीं मेरे पास तो कोई कज़ा रोजा नहीं था, तो अगर ये बात जहन में आते ही फौरन तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, उस रोजे की कज़ा भी नहीं है, गुनाह भी नहीं है। और अगर याद आया फिर सोचने के कुछ देर बाद उसने डिले किया, रोजा फौरन नहीं तोड़ा, अब बाद में तोड़ेगा तो अब इस रोजे की कज़ा रखनी पड़ेगी। नफिल रोजा कसदन नहीं तोड़ा बल्कि बिला इख्तियार टूट गया। मिसाल के तौर पे रोजे के बीच में हैज आ गया, जब भी कज़ा वाजिब है औरत के लिए, जानबूझ के तो नहीं तोड़ा लेकिन अलबत्ता कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से रोजा टूट जाता है, जैसे औरतों के खास दिन है तो कहते हैं कि कज़ा करनी पड़ेगी बाद में। ईदैन या अय्याम तशरीक, ईदैन ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा, अय्याम तशरीक उसके बाद के 3 दिन, ये पूरे मुकम्मल 5 दिन का बयान। ईदैन या अय्याम तशरीक में रोजा नफिल रखा तो उस रोजे का पूरा करना वाजिब नहीं। किसी बंदे ने ईद के दिन रोजा रख लिया या ईद उल अज़हा के दिन रोजा रख लिया और उसके बाद के 3 दिनों में किसी भी दिन तक का रोजा रख लिया, कहते हैं कि उस रोजे को पूरा करना जरूरी नहीं बल्कि तोड़ देना वाजिब है, क्योंकि ये दिन अल्लाह की तरफ से मेहमानी के हैं और रब की मेहमानी से ये इनकार है कि बंदा उस दिन रोजा रखे। रब ने फरमाया कि हमारे दस्तरखान की तरफ से तुम्हारी दावत है, अब कोई बंदा रोजा रखे तो मतलब ये कि रब की दावत को वो इनकार कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, इसलिए वो रोजा नहीं पूरा किया जाएगा, तोड़ दिया जाए। ना उसके तोड़ने से कज़ा वाजिब, कज़ा भी नहीं रखनी पड़ेगी तोड़ दिया तो, बल्कि उस रोजे का तोड़ना ही वाजिब है। और अगर इन दिनों में रोजा रखने की किसी ने मन्नत मानी तो मन्नत पूरी करनी वाजिब है, मगर इन दिनों में नहीं बल्कि और दिनों में। किसी ने मन्नत मानी कि मैं ईद उल फित्र के दिन रोजा रखूंगा, ईद उल अज़हा के दिन रखूंगा या बाद के 3 दिनों में रखूंगा लगातार, जो ईद उल अज़हा के बाद के 3 दिन है, तो उस मन्नत को पूरा करना तो जरूरी है, लेकिन इन 5 दिनों को छोड़ करके जब चाहे पूरा कर ले और मन्नत पूरी हो जाएगी। नफिल रोजा बिना उज़्र तोड़ देना जायज है, बिना उज़्र तोड़ देना नाजायज है। मेहमान के साथ हाँ, अगर मेजबान नहीं खाएगा तो उसे नागवार होगा, या मेहमान अगर खाना ना खाए तो मेजबान को बहुत तकलीफ होगी, तो नफिल रोजा तोड़ देने के लिए ये उज़्र है। आई बात समझ में? नफिल रोजा रखा था, घर पे मेहमान आ गए, अब उसे लगता है कि यार मैं अगर मेहमान के साथ नहीं खाना खाऊंगा तो मेहमान बुरा मान जाएंगे, या ये कि वो मेहमान को पता है कि अगर मैं नहीं खाना खाऊंगा तो इनको भी तकलीफ होगी, और उसको हो भी वाकई उसको तकलीफ होगी, मेरा मेहमान खाना नहीं खाएगा, तो ये दोनों कारण बनते हैं रोजा तोड़ देने का। नफिली रोजा तोड़ा जा सकता है, लेकिन कुछ शराइतें आगे समाप्त करें, वो क्या है? बशर्ते कि ये भरोसा है कि इसकी कज़ा कर लेगा। पहली शर्त, उसे यकीन है कि हाँ आज अगर रोजा तोड़ दिया मैंने इस उज़्र की वजह से, कल कज़ा कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं, पहली शर्त। दूसरी शर्त, बशर्ते के ज़हवाए कुबरा से पहले तोड़े, बाद को नहीं, यानी कि मेहमान को जो खाना खिलाया ऐसे टाइम पे कि आधा पहले दिन का जो आधा हिस्सा है, पहला हिस्सा, उसके ढलने से पहले पहले ये नौबत और ये कंडीशन पेश आ रही है तो रोजा तोड़ दिया जाएगा। दिन के ढलने के बाद के अगर ये कंडीशन पेश आती है तो फिर रोजा नहीं तोड़ा जाएगा, फिर इजाजत नहीं है। जवाल के बाद माँ बाप की नाराजगी की वजह से तोड़ा जा सकता है, ये सिर्फ माँ बाप के लिए इजाजत है। बेटे ने रोजा रखा, माँ बाप नाराज है कि नहीं रख सकते आप, ये काम करो, वो करो, ये करो, फिर चाहे वो जवाल के बाद हुक्म दें या जवाल से पहले यानी दिन के ढलने से पहले कहें या बाद कहें, तो उनकी इजाजत की, उनकी मर्जी के लिए रोजा तोड़ा जा सकता है। तो इससे माँ बाप का अदब और एहतराम और उनके मकाम और मर्तबे का भी पता चलता है कि इतनी अहम इबादत को भी शरीयत ने माँ बाप की वजह से क्या है, खत्म करने का हुक्म दिया है। और इसमें भी असर से कबल तक तोड़ सकता है, बाद असर नहीं। हाँ, अगर असर का वक्त हो गया तो अब इजाजत नहीं, क्योंकि असर के बाद में वक्त ही कितना बचता है, नॉर्मल सा टाइम होता है, इसलिए इजाजत नहीं। आगे, किसी ने ये कसम खाई कि अगर रोजा नहीं तोड़ेगा तो मेरी औरत को तलाक है, कसम खा ली मैंने रोजा नहीं तोड़ा तो मेरी औरत को तलाक हो जाएगी, और हो ही जाएगी अगर नहीं तोड़ेगा तो शरीयत ने उससे बचने के लिए इजाजत यहाँ ये दी है, तो उसे चाहिए कि उसकी कसम सच्ची कर दे, यानी रोजा तोड़ दे, अगरचे रोजाए कज़ा हो। कहते हैं कि ये
طلاق سے بچنے کے لیے اس کے لیے اجازت دی جائے گی، بلکہ حکم یہ دیا جائے گا کہ آپ روزہ توڑیں تاکہ آپ کی عورت کو طلاق نہ پڑے، اور چاہے بھلے یہ روزہ رمضان کے قضا یا کسی اور روزے کی قضا کے طور پہ ہو، یہ تو نفل سے بڑھ کر روزہ ہے، نفل تو یہ بڑا بعد کا درجہ ہے، رمضان کے روزے کی قضا رمضان کے برابر ہے، کسی واجب کی قضا واجب کے برابر ہے، تو شریعت نے یہ حکم فرمایا کہ اگر ایسی قسم اوٹ پٹانگ کسی نے قسم کھا لی تو بہتر ہے کہ اس قسم کو توڑے، بعد میں اس قسم کا جو کفارہ بنتا ہے وہ ادا کر دے۔ آخری مسئلہ سماعت کریں، اس کی کسی بھائی نے دعوت کی تو زہوہ کبریٰ سے قبل روزہ نفل توڑ دینے کی اجازت ہے۔ کسی مسلمان بھائی نے کسی کی دعوت کی، پتہ نہیں کہ یہ روزے سے ہیں، انہوں نے دعوت کر دی، تو اب اپنے اس بھائی کے دل کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر جو ہے نفلی روزہ توڑا جا سکتا ہے، اور اس کی دعوت جس وقت بھی وہ بلائے ایکسپٹ کی جائے، قبول کی جائے اور حاضر ہوا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک و مولا ہمیں شرعی مسائل کو